Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss our today lecture. Our today lecture is related to the human nervous system. Human nervous system can be divided into two parts. First one is called central nervous system and second is called peripheral nervous system. In central nervous system, brain and spinal cord comes, and in peripheral nervous system, there are nerves present that are extending from base of brain to the central nervous system. So first of all, we will discuss here spinal cord. What is spinal cord? Spinal cord is a white tissue passing through the vertebral column. It extends from the base of brain towards the vertebral column. There are three layers. These layers are called meninges. The function of these three layers, meninges, are surround and protect the spinal cord. These layers protect the spinal cord. Now we discuss total pair of nerve roots. There are 31 pair of nerves. First of all is cervical nerves. Cervical nerves are located in cervical region. There are 8 pair of nerves in cervical region. Then after cervical region, there comes thoracic region, your chest region. In thoracic region, 12 number of pairs of nerves located. After thoracic comes lumbar region and 5 pair of nerves located in lumbar region. After lumbar region comes sacral region, 5 pair of nerves located here, and at the last comes coccygeal region, coccygeal nerve, 1 pair of coccygeal nerve. So here total 31 pair of pair of nerves. Now we discuss here brain. What is brain? Brain is organizing and processing center of central nervous system, and the brain is the site of sensation, memory, intelligence. If we divide brain into two parts, left hemisphere and right hemisphere. The outer portion of brain is grey color, the matter is color of grey, and the inner portion is contain whitish matter. Outer is greyish matter and inner is whitish matter. Now we divide the brain into three different parts. First one is called hindbrain, second one is called midbrain, third one is called forebrain. Hindbrain contains three main parts: medulla, cerebellum, pons. The function of hindbrain is serves as a passageway of nerves. So there is a passageway of nerves. Nerves passes through this. And the second one is called midbrain. Midbrain is located between the hindbrain and forebrain. So it consists of nerve tract. Last one is called forebrain. Forebrain contains cerebrum, thalamus, hypothalamus. The function of this part of the brain is to smell, taste, speech, vision, movements, emotions, and a hypothalamus synthesizes the hormones. Now, if you look at the diagrammatic view, this is the one side of
brain, cross section of brain. Here is brain stem. This section is called medulla, pons, and here present pituitary gland. Pituitary gland is present at the base of brain. So the function of pituitary gland, what is the function of pituitary gland? Pituitary gland is also called master gland because it controls all glands. This part is cerebral, and this is the ventricle region of brain, and here is thalamus and midbrain. Now I will brief this in Urdu. आज का जो टॉपिक है ये ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर आप डिवाइड करें तो ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर डिवाइड करें तो किसमें आएगा? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये किसके, इसमें अंदर क्या क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स आएंगे। और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो यहाँ पे नर्व रूट्स होती हैं जो एक्सटेंड कहाँ से होती हैं? बेस ऑफ द ब्रेन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां से। अब अगर स्पाइनल कॉर्ड को हम यहाँ पे डिस्कस करें तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक वाइट कॉर्ड टिश्यू है, और वाइट कॉर्ड टिश्यू है, और ये बेस ऑफ द ब्रेन से लेके पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें उस तक आता है। और इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। और मेनिंजेस क्या करती हैं? इसको सराउंड करती हैं और इसको प्रोटेक्ट करती हैं। अब अगर टोटल नंबर ऑफ नर्व रूट्स को देखा जाए तो 31 पेयर होते हैं। पूरा जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है ना उसमें 31 पेयर होते हैं नर्व्स के, जो डिफरेंट टाइप जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके गर्दन का एरिया आता है जिसमें सर्वाइकल नर्व्स आती हैं। सर्वाइकल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं? 8 पेयर्स होते हैं। गुड। और इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आएंगी वो थोरेसिक नर्व्स आएंगी, और थोरेसिक नर्व्स के कितने पेयर होंगे? 12 पेयर। शाबाश। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो लंबर नर्व्स आ जाएंगी। लंबर नर्व्स के कितने पेयर्स होंगे? 5। गुड। देन कम्स सैक्रल नर्व्स। सैक्रल नर्व्स के कितने होंगे? 5। एंड देन कम्स कॉक्सिजियल नर्व, कौन थे? 1 पेयर। सो द होल 31। तो 31 पेयर आपके पास यहाँ पे नर्व्स के आ गए। अब अगर ब्रेन को हम थोड़ा सा डिस्कस करें यहाँ पे, तो ब्रेन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ये बेसिकली ब्रेन का क्या है? खासियत है। और इसके अलावा ये ऐसी साइड है ब्रेन जिसमें हम सेंसेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अगर ब्रेन को हम डिवाइड करें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का और एक राइट हेमिस्फीयर है। अब अगर ब्रेन को आप स्टडी करें, देखें, तो इसका जो आउटर पोर्शन है, एक आउटर पोर्शन है और एक इनर पोर्शन है। जो आउटर पोर्शन है ये किस कलर का होगा? ग्रे मैटर का होगा। और जो इनर पोर्शन है ये किसका होगा? व्हाइट मैटर का होगा। क्लियर? अब अगर ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं, दिमाग को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 हिस्सों में दिमाग को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट आएगा हाइंड ब्रेन, फिर दूसरा पार्ट आएगा मिड ब्रेन, और जो तीसरा पार्ट आएगा वो क्या आएगा? फोर ब्रेन। अगर मिड ब्रेन को देखा जाए तो इसमें 3 हिस्से होते हैं दिमाग के अंदर। जो मिड ब्रेन का एरिया होता है, हाइंड ब्रेन का सॉरी जो एरिया होता है, इसमें मेडुला होता है, सेरिबेलम होता है और पोन्स होता है। अब ये जो पार्ट है दिमाग का सर्व एज पैसेज वे ऑफ नर्व्स। ये क्या करता है? नर्व्स का पैसेज वे डिसाइड करता है। उनका पैसेज कैसे है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये बेस है, यहाँ से निकली नर्व्स दिमाग के बेस से और नीचे आई सर्वाइकल के पास, सर्वाइकल से फिर कहाँ पे आएगी? थोरेसिक। ये पूरा एक नर्व रूट है, फिर लंबर की तरफ आएगी, फिर सैक्रल की तरफ आएगी और लास्ट में कॉक्सिजियल की तरफ आ जाएगी।
सेकेंड पार्ट जो है इसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन बेसिकली हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान में वाक़ होता है और ये के कंसिस्ट ऑफ नर्व ट्रैक्ट, एक नर्व का जो ट्रैक है, जो रास्ता है नर्व्स का, उसका बेसिकली उसके ऊपर कंसिस्ट होता है। लास्ट पे आता है फोर ब्रेन आता है। फोर ब्रेन को अगर देखा जाए तो इसमें सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। और अगर इस पार्ट के अगर फंक्शंस को हम डिस्कस करें तो आपके जायके की हिस्स, आपके स्मेल की हिस्स, बोलने का जो अमल है, देखने का है, जो मूवमेंट्स आप करते हैं सारी, और जो इमोशंस आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, ये सारे क्या है इस पार्ट का हिस्सा है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन को सिंथेसाइज करता है और फिर वो हार्मोन्स अपने डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो ये आज का टॉपिक था बेसिकली, जो हमने क्या समराइज किया कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स पे है। पहला कौन सा है, सीएनएस, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होती है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व क्या होती है, नर्व एक्सटेंडिंग होती है। फिर उसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड को हमने डिस्कस किया, फिर ब्रेन को, फिर ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स को। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट जो दूसरा लेक्चर है उसको हम इंशाल्लाह डिवाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।